Hello, good morning, good afternoon, good evening to all the lovely ladies who are watching us at whatever time that is possible for you. This is Kusha Kalra from the Bespoke Designs, and I am back again at the Mompreneur Spotlight series, which is all about you moms, which is all about you amazing mothers who are also entrepreneurs. It's the time when we are close to celebrating Mother's Day this year. And that's exactly why I thought of hosting a special Mompreneur Spotlight series where we are highlighting incredible women who are building businesses while also raising families. So each conversation is going to be about the journey as a mom and entrepreneur, their stories, the lessons that they have learned in motherhood, and how they have been balancing life, business, and ambition. And I feel that it's an honor to be able to celebrate the strength, ambition, and brilliance of mothers who are building powerful businesses and creating legacies. And today we have with us an amazing mompreneur. Her name is Mala Patankar. I hope I said it correct. So, Mala, thank you so much for taking time and, coming to the Mompreneur Spotlight series. I am really, really excited to know more about you. But before I jump into my set of questions, why don't you just go ahead and introduce yourself for our audience? Yes, thank you. Thank you, Kusha, for inviting me. This is a great honor to me because, see, we ladies always work only for others, right? And we never get the time to give some informative session, right? To tell about our journey. But this is the platform where I am getting a chance to showcase my journey and give a little bit inspiration to all the women. So, Kusha, my name is Mala Badankar, right? And I am working from last 16 years. I have two lovely kids and handling my family, my kids, and with this, I'm also what you can say. I'm also going for my dreams. Also, we women always think about others and our family, and we always like that. कि, अरे अपने बारे में क्या सोचना? This is the thought we always think. Family is always first. Yeah, it is always first. But अगर हम अपने बारे में भी थोड़ा सोचेंगे so of course we can take our family ahead also. Absolutely. I think that's a beautiful way you've shared with us. And, that you've said that so many times we kind of put ourselves second, third, fourth, or maybe last, in terms of our own dreams, our own aspirations, and what do we want from life. But then again, I feel this is a great platform and an opportunity for every other woman out there to listen to stories and the journey of people like you. And I'm sure whoever's listening to this, they will go back with that one big lesson that, first love yourself, first prioritize yourself. And I'm sure if you take care of yourself, automatically you'll be able to take better care of your family, your children, and, and life in general as well. So, Mala, without further ado, I will want to jump in straight away to my list of questions which I have. I want you to share with us about your journey as a mother and as an entrepreneur. So, how did it start, and what does it look like? Of course, Kusha. See, the first thing, okay, before starting this, जब मैं छोटी थी, my father used to always say this, where a woman should always be a financially independent. Even if Hmm. she is working alone, like वो अपने पापा के घर पे हो या अपने पति के घर पे हो, she should be financially independent. And we are four sisters and two brothers, and all my sisters are working, and I am the younger one in the family. So for me, टू लाइक यही चीज ऑलवेज बचपन से बोली जा रही है एंड आई एम सीइंग माय सिस्टर्स आर वर्किंग ओके इवन माय सिस्टर इन लॉ इज वर्किंग सो Hmm. दिस एवरीथिंग मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था एंड उसके साथ साथ आई वंस लाइक यू कैन से व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू हैव अ बिग ड्रीम्स सो ऑलवेज ये थॉट था कि नहीं लाइफ में कुछ बड़ा करना है उन्हें पूरा करना है और उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा आई वाज रेडी फॉर दैट सो एक बचपन से जो छोटा सा बीज जो दिमाग में घुस गया था ना उसी से यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होती है Right. and once I got married, basically I am from Gujarat, Ahmedabad, Okay. and
आफ्टर मैरिज आई केम टू पुणे। Mhm. जब मैं आई वाज बाय एजुकेशन आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। Okay. ओके, Wow. you can say it is my good luck because at that time in 2008 there was a quite recession in IT industry. So I was like, I am a computer engineer but I am not getting any work, Hmm. राइट? एंड वो बीच जो था ना कि नहीं आप पापा के घर पे हो या पति के घर पे हो, आप Hmm. यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। Right. एट दैट टाइम आई केम टू अबाउट कम टू नो अबाउट द वेलनेस इंडस्ट्री। Mhm. Frankly speaking, my weight is also higher. I was 80 plus. So I was looking Mhm. for something. वेट लॉस किया, उसी के साथ-साथ गॉट अंडरस्टूड कि दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग। Hmm. मुझे कोई हेल्प मिल रही है जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी लेडीज़, दे आर आल्सो इन सर्च ऑफ, वो भी ऐसा कुछ देख रही है। Right. सो देयर वाज़ अ अपॉर्च्युनिटी टू बिकम अ वेलनेस कोच। Okay. कोच बन के जो है गाइड कर एंड आई स्टार्टेड, चलो अभी तो कुछ कर नहीं रही हूँ। सो इट वाज़ लाइक साइड बाय साइड मुझे कुछ करना था। आई वाज़ नॉट गेटिंग इन माय फील्ड, उस फील्ड में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये चांस मिला चलो करके देखते हैं। Right. देखो वो एक लाइन है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। Yes. बिल्कुल. एक सिंपल लाइन ने दैट चेंज माय एंटायर कर दिया। माय पूरी लाइफ Hmm. चेंज। एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली आई वाज़ अ पर्सन जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, राइट? आई Hmm. वाज़ अ योगा टीचर आल्सो। सो मुझे Mhm. फिटनेस और ये सारी चीज़ें बहुत Right. and I got the opportunity in the same field. So I started learning. Then I started doing courses, certificates वगैरह करने का start किया. Get the proper knowledge. And in 2010, I started Embrace Wellness. In that wellness center, I started guiding ladies and all the people. Okay, Hmm. for their Hmm. good health, how to have a balanced lifestyle, right? Mhm. Because in our today's lifestyle we are more about काम काम काम, बस Yes. यही के पीछे रहते हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट फैमिली, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ आल्सो, राइट? Correct. तो ये सारी चीजों में आई स्टार्टेड, मैंने उन लोगों को गाइड करना चालू कर दिया। Mhm. एंड दैट्स हाउ राइट नाउ आई एम हियर। राइट नाउ यू विल से मोर देन 1500 people I have guided for Okay. proper their health journey. Okay, Okay. so that this is my completely 15 years right now. Beautiful. Throughout this journey, I have helped so many people, Hmm. actually inspire them to have a healthy, active lifestyle. Amazing. Amazing. That is so good. And for ladies, I have inspired them that if I can do, Hmm. you can also do. Correct. Because I'm having two children. Okay, Yeah. so बच्चों को Yeah. संभाल को, फैमिली को संभाल के, इफ आई कैन, मैं भी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी लेडीज मेरे ग्रुप में है। यू कैन से इन माय टीम मोर देन 70% टीम इज बिलोंग टू वुमेन। Good. Some are Excellent. working, some are housewife. Yeah. Even there are student only, but they have Hmm. started with this Right. wellness coach, Right. and they are helping people and they are Hmm. earning. Beautiful. How amazing this is. I think this is such a wonderful and truly inspiring, journey that you've shared with me. मी एंड माय हस्बैंड, हम कभी भी घर पे जो है जंक फूड नहीं लाते थे। नेवर, Hmm. नेवर, Hmm. कभी जंक फूड नहीं लाते। कभी-कभी अगर इच्छा हो गई ना कि हाँ, चल वड़ा पाव, हम दोनों अकेले बाहर जाएँगे। लेकिन उसके सामने कभी नहीं खाया, उसके सामने कभी नहीं खाया। उसका ये नतीजा हुआ कि व्हेनेवर शी वाज़, कभी भी छोटी, जब कभी भी किसी बर्थडे पार्टी में जाएगी और अगर उन्होंने वहाँ पे पिज़्ज़ा रख दिया, ये हाँ. बोल के आ जाएगी Hmm. कि मम्मा ये तो जंक फूड खिला रहे हैं। दैट यूज्ड लाइक क्या सिखाती है। ओह माय गॉड! वेरी गुड। ग्रेट एग्जाम्पल आई थिंक सी हम अपना एनवायरनमेंट जो है, बच्चों को जैसा देंगे वो वैसे ही ब्लूम करेंगे। तो वो अगर हम उसके लिए कॉन्शियस हैं, हम अभी से उसके लिए तैयार हैं, हम अपने आप को वो विज़न देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चैलेंज बच्चे को आ सकता है, तो उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। आई मीन लाइक व्हेन यू से कि नाउ शी इज़ अ टीनेजर, सो उसकी तैयारी आपने 2-3 साल पहले शुरू करी है ताकि व्हेन शी इज़ नाउ इन दैट actual phase, there will be less struggles and accordingly you have to plan even for your business. You have to preempt कि क्या problems आ सकती हैं, क्या challenges आ सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये business what were your biggest challenges, that you had to face when you were building your business? बिगेस्ट चैलेंजेस, देयर आर सो मेनी, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला था, राइट, कि मुझे अगर किसी को बोलना है Correct. आई हैव टू डू, देन Yes. मुझे, एंड कई बार ऐसा होता था दैट थिंग इज नॉट कंफर्टेबल टू मी, Right. राइट? Okay. बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली।
ओके, ओके। हस्बैंड और बच्चे ही है। माय हुँ, इन-लॉज़ आर आल्सो स्टेइंग विथ मी। ओके। सो समटाइम्स ध्यान रखना है, उनका भी येस, प्रायोरिटीज़ जो है हेल्थ वाइज़ है, करेक्ट, वी हैव टू गिव, राइट? उनकी करेक्ट, भी हमें वो देना पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे मुझे वो समझा कि सी इट इज़ नॉट अबाउट कि आप किस वे से कोई भी चैलेंज आ तो इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। हुँ, अगर मेरे पास चैलेंज है और मैं ये लेके बैठ जाऊँ, अरे बाप रे! क्या चैलेंज है, कितना चैलेंज है, हुँ, ऐसे करूँगी यू विल नॉट फाइंड एनी वे। राइट, But if you accept it, okay, this is the challenge, okay, so now I have to find the solution. करेक्ट। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो काम माइंड से आप अगर सोचोगे यू विल गेट एवरी सॉल्यूशन। द मोस्ट हुँ, इम्पोर्टेंट थिंग आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो हुँ, इम्पोर्टेंट है। आप अगर उसको प्रॉब्लम लेके बैठ गए, तो वो हुँ, प्रॉब्लम ही है, कोई हुँ, एक भी आइडिया नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड यू विल बी इन दैट ज़ोन ओनली, प्रॉब्लम, येस, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। येस, येस, लेकिन येस, अगर आप उसको चैलेंज के रूप में लेते सकते हो, यू विल फाइंड सम वे बिकॉज़ हुँ, कभी नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देयर इज़ येस, ऑलवेज़ अ सॉल्यूशन, येस, ऑलवेज़ अ सॉल्यूशन। आप अपना कौन-सा एनर्जी, राइट, वाइब्रेट कर रहे हो करेगा कि आप जो है प्रॉब्लम की तरफ जाओगे या आप जो है सॉल्यूशन की। तो इट इज़ अप टू यू कि वो पॉजिटिव एनर्जी हो, हुँ, जैसे कि अभी कई बार ऐसा होता है कि आई हैव टू गो फॉर सम कॉन्फ्रेंस आल्सो राइट, एंड देयर आर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। करेक्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो 1 दिन में तो वापस नहीं आओ, नहीं, ऑफ़ कोर्स नॉट, या विल टेक लाइक 1 हफ्ता तो ऐसे ही चला जाता है। चला जाता एंड एट द टाइम जो है पेरेंट्स तो समझ जाते हैं बिकॉज़ दे नो, है। हुँ, लेकिन बच्चों का, छोटे बच्चों को करेक्ट, हाँ। आई रिमेंबर इट, मुझे एक याद है, अभी भी याद है। हुँ, हुँ, सो देयर वाज़ अ लाइक एक वेकेशन था ओके, एंड इट वाज़ अ कंपनीज़ प्रमोशन, वन काइंड ऑफ राइट, प्रमोशन एंड एवरी ईयर ऐसे कुछ कंपनी के प्रमोशन होते हैं। आई वी हुँ, विल नेवर क्वालिफाइड, कभी हमने हुँ, उसको वो नहीं किया था। सो वन फाइन ईयर वी डिसाइडेड कि नहीं ये तो करना ही है एंड ट्विशा वाज़ सो स्मॉल कि कभी मैं कॉन्फ्रेंस में गई, घर से मैं रेडी होके नहीं जा सकती थी। हुँ, आई कांट, मुझे जो है सिर्फ कपड़े पहनने हैं, ओके? और फिर नीचे उतरने में बैठ के मेकअप एंड वगैरह सारा कुछ देन करना। चेंज, आई हैव टू बी रेडी इन द कार एंड देन फिर जो है हम लोग देन यू जाएँगे। कैन गो, या देन यू कैन गो। अगर वो उठ गई, तो समझ लो मैं, हाँ, उसको पता चल गया। तो अगर वो उठ गई तो मेरा 2-3 घंटा तो ऐसे ही उसको खत्म, हाँ। समझाने में उसको एंड ओह देन माय मेरा गॉड! फिर कॉन्फ्रेंस के लिए डिले हो जाना, दैट वाज़ येस, सो बिकॉज़ इट वाज़ ओनली येस, फॉर 4-5 इयर्स। येस, येस, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ इस चैलेंज को। 1 ईयर वी क्वालिफाइड कि नहीं एक बार तो हम जाएँगे वैकेशन में, उसको लेके गए वैकेशन एंड सी आई हाँ, एन्जॉय फॉर द 1 वीक। पूरा 1 ब्यूटीफुल, हफ्ता उसने वो सिंगापुर वैकेशन रिटर्न में जब हम आ रहे थे, जिस दिन हमारा रिटर्न फ्लाइट था, कंपनी ने एक फ्रिज मैग्नेट दिया, उसपे लिखा था वेलकम टू इस्तांबुल, सी यू इन इस्तांबुल, ओके। मम्मा व्हाट इज़ दिस? द नेक्स्ट वैकेशन, ओके। सो आप मुझे लेके जाओगे? मैंने बोला इफ यू मुझे अलाउ करोगे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ऐसे ट्रेनिंग, देन आई कैन टेक यू। आई वाज़ गेटिंग रेडी एंड फॉर मी सब कहाँ जा रहे हो? बोला बेटा हुँ, कॉन्फ्रेंस जाना है। बोले ओके बाय, एंड वेंट वाओ! अगेन टू स्लीप गुड, एंड दैट वाज़ लाइक चेंज, बिग अगर ट्रांसफॉर्मेशन, आप लेडीज़ इवन आप जो है उसको एक्सपीरियंस कराओगे नहीं कि ये येस, क्यों कर रहे हो, दे विल अंडरस्टैंड करेक्ट। बिकॉज़ माय मेरे व्यू के हिसाब से हम पेरेंट्स जो है उतना एडजस्ट नहीं करते जितने बच्चे करते। So I think with that thought, if you had to give advice to moms who are now, for example, starting a business, so what do you think would you advise them? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉम्स है जो स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड आई विल गोइंग टू से कांग्रेचुलेशन, एटलीस्ट आपने डिसाइड किया, Yes, राइट, कि मुझे स्टार्ट करना है बिकॉज़ देयर आर सो मेनी मॉम्स जो है अभी तक वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। या अभी भी वो सेटबैक में है कि नहीं आई कांट डू इट। Yes, तो अगर yes. आपने डिसाइड किया है कि यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, फिर वो जॉब हो, बिज़नेस एनी व्हाटएवर, यू वांट टू Hmm. स्टार्ट आप खुद की अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो दिस इज़ द ग्रेट थिंग, कांग्रेचुलेशन। सेकंड थिंग, डोंट थिंक कि आप कौन से फील्ड से, ओके, Hmm. अगर आपको फील्ड चेंज, फॉर एग्जांपल माय पैशन वाज फिटनेस, Yes. राइट, बट माय एजुकेशन वाज इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, Correct. Yes. राइट? सो इन 2008 आई वाज लुकिंग फॉर आईटी में, Hmm. बट से एज़ आई सेड कि रिसेशन चल रहा था, नहीं मिल रहा था एंड आई गॉट Hmm. अनदर अपॉर्च्युनिटी। Right. अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को सँभाल के, फैमिली को सँभाल के, आप अगर कर सकते हो,
तो गो फॉर इट, डोंट हेजिटेट। मैंने एडवाइस टू ऑल द वुमन, डोंट जस्ट वो मत हो जाओ, फिक्स मत हो जाओ। देयर आर सो मेनी Absolutely. अपॉर्चुनिटी, आपको जहाँ पे आपका पैशन है, जहाँ पे आपको Hmm. अच्छा लगता है कि यू कैन डू इट, गो फॉर इट, Yeah. जस्ट गो फॉर इट। Hmm. Beautiful. तो वी ऑलवेज से कि आपने अगर जो बोलते हैं ना, सीखोगे, राइट, तो चाँद पे, सही राइट, बात है। नहीं सीखोगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल। बिल्कुल। माय गॉड! आप क्या सही पावरफुल नगेट्स एक के बाद एक देई जा रहे हो। अब मुझे ये जानना है कि इन टर्म्स ऑफ योर चिल्ड्रन, सो इट्स अ मिक्स ऑफ मदरहुड एंड बिजनेस लाइक आई सेड। सो व्हाट इज द लेगेसी यू वांट टू क्रिएट फॉर योर चिल्ड्रन? लेगेसी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, अगर एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं, तो उनका खुद का फिटनेस है, उनका खुद का हुँ, हेल्थ। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। बिकॉज़ अगर आप ध्यान से देखो, जब आप अपने करियर के टॉप पे होते हो, राइट? जब हुँ, आप हुँ, उस जगह पे हो, जहाँ पे आपको करियर के ऊपर फ़ोकस करना है, आपके जॉब में फ़ोकस करना है, राइट? हुँ, और हुँ, उसी टाइम पे पेरेंट्स का एज ऐसा होता है कि जहाँ पे उनको हेल्थ सपोर्ट चाहिए। बच्चे अपने करियर के टॉप पोज़ीशन पे कि उसके लिए वो कर रहे हैं, और अगर पेरेंट्स का हेल्थ अगर नहीं अच्छा होगा, तो उनका ध्यान वहाँ उनका जाएगा। डाइवर्ट हो, हुँ, एंड दे कांट गिव 100%, यहाँ पे नहीं दे पाएँगे, और एब्स जिसकी वज़ह से जो है उनको थोड़ा-सा चैलेंज हो। सो फॉर करेक्ट, मी, अगर मैं मेरे बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेगेसी देना, तो मेरा खुद का हेल्थ। करेक्ट। खुद का हेल्थ, अगर मैं मेरे हेल्थ के, माय किड्स कैन फोकस ऑन देयर करियर। ऑन देमसेल्फ, यस। फॉर देम सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत मम्मा का नहीं हेल्थ, है। राइट? दिस विल बी द बेस्ट लेगेसी जो है आपको दे सकते हो। हुँ, दूसरा, एज़ अ वर्किंग वूमन, हुँ, आई इंस्पायर माय डॉटर, मैं मेरी डॉटर को इंस्पायर कर रही हूँ। अगर मैं बच्चों को सँभाल के, फैमिली को सँभाल के, मैं अगर जो है काम कर सकती हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन, तो तू भी कर सकती है। हुँ, जैसे मैंने बताया, हम जो है बच्चों को कुछ कहेंगे वो नहीं करेंगे। दे विल लर्न राइट, बाय एक्शन ओनली। यस। तो माय एक्शंस इज़ लर्निंग। हुँ, सेम राइट, थिंग, तो क्या सिखा रही हूँ कि हुँ, फ्यूचर में लाइफ पार्टनर में तुझे क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हुँ, राइट, राइट, हुँ, हुँ, करेक्ट, माँ को, यस, राइट? यस, तो यस, दिस ऑफ इज़ हाउ कोर्स, जो है हम लोग बच्चों को ये चीज़ जो है अपनी खुद की जर्नी, हुँ, कि ऑलवेज़ जो है हेल्थ को पहले प्रायोरिटी रखो। करेक्ट, बिकॉज़ हेल्थ का अगर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, ओह यस, एवरीथिंग टोटली, विल बी टेकन केयर। फिर आपको कुछ जो है वो ध्यान में, हुँ, एंड कुछ हुँ, करना नहीं है, डेली बेसिस पे बस करो, खाने में ध्यान रखो, एवरीथिंग विल बी ओके। राइट, ब्यूटीफुल, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना इसीलिए। येस, ऑफ कोर्स। So, Malaji, if you had to give a free gift for our audience, now is the time that you can share. And definitely, whatever that gift is, uska jo link hai, we'll put it under this video so people are able to sign up or register or access it. So, फ्रेंड्स, आप सबके लिए मेरी तरफ से एक छोटा-सा जो गिफ्ट है, से एक पर्टिकुलरली वेलनेस स्कोर, ये आपको बताएगा कि एक्चुअली आप हेल्थ के पैरामीटर पे कहाँ पे, आपको अलग-अलग करीबन 13 क्वेश्चंस रहेंगे, जस्ट आपको टिक करना है, नथिंग, कुछ जस्ट आपका जो भी एक्सपीरियंस है विथ योर जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द क्वेश्चन इज, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, कि आप नींद कैसे लेते हो, राइट? कितने बजे लेते हो, right. राइट? क्या टाइमिंग है आपका नींद का? आपकी नींद का Hmm, पैटर्न, hmm, डूइंग राइट, आई एम डूइंग कुछ मुझे करना है, राइट? या आई एम डूइंग सम कंप्लीटली मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ। correct. Yeah. बिकॉज़ आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर भी वो होगा, और वो हेल्थ पैरामीटर्स जो है हमने वहाँ पे वो किए। That's a beautiful gift. So, definitely, we are going to add the link under this video for all of you to check. And I'm sure once you go through that, if you do need help, you can reach out to Mala for further consultation or for more help related to your health. And I think with that, we are almost at the end of our interview for today. So I think, Malaji, I had a great time talking to you, and we had such amazing conversation knowing about your journey, your story. It's truly inspiring. I'm sure our audience will also enjoy listening to this episode. So once again, I want to really thank you for coming for this Mompreneur Spotlight series.